ঠিক আছে তো বহুতে হ'ব পাৰে মই মোৰ বাক্য শুনা নাই আৰু বহুতে হ'ব পাৰে ইয়াতে থকা সকলে মোৰ বাক্য পাইছে তো আজি মই নহয় ঈশ্বৰ আপোনালোকৰ কথা ক'ব মোৰ যোগেদি so we will see about belief right আমি আজি বিশ্বাসৰ বিষয় চাম যত আমি যেতিয়া বিশ্বাসৰ কথা কওঁ ন তো এতিয়া যদি মই সবকে সুধো তোমালোকে বিশ্বাস কৰা নে নকৰা সবে ক'ব হয় মই বিশ্বাস কৰোঁ ইয়াতে সবে ক'ব হয় মই বিশ্বাস কৰোঁ যদি মই সুধো তোমাৰ বিশ্বাস আছে নাই then that person will say I believe এটা হকা সন্তান সকলোৱে ক'ব মই বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু আজি সেই বিশ্বাস কৰোঁতো আমি গভীৰভাৱে চাম যে অকল বিশ্বাস কৰোঁতো ক'লে হৈ যায় নে তাৰ পৰা আৰু অধিক আমাৰ দায়িত্ব আছে যেটো আমি কৰিবলৈ লাগে হালেলুয়া আমেন সেইটো কাৰণে কাৰণ যেতিয়া আমি বাইবেলত চাওঁ বাইবেলত 200-300 টাইমছলৈকে বিশ্বাসৰ কথা কোৱা হৈছে আমেন বাইবেলত 200-300 টাইমছ আমি বিশ্বাসৰ কথা যোনটো বিলিভ বুলি কোৱাটো আছে ইন ইংলিছ বিলিভ এই ইংলিছত থকা বিলিভ ৱৰ্ডটো 200-300 টাইমছ আমি বাইবেলত দেখিবলৈ পাওঁ আমেন তো সেই কাৰণে যে ঈশ্বৰে কিহত তাক ইমান মহত্বপূৰ্ণ দিছে ঈশ্বৰে কেলে তাক ইমান প্ৰয়োজনীয় হিচাপে ভাবিছে তাক আজি আমি জানিব লাগিব কাৰণ কেলে ঈশ্বৰে বাৰবাৰ কৈছে বিলিভ 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 কেলে ঈশ্বৰে কৈছে সেইটো কথা তো আজি আমি সেইটো জানিবলৈ হলে আমি বাক্য জানিব লাগিব হালেলুয়া কাৰণ বাক্য নজনাকে আপোনালোকে বুজি নাপাব যে ঈশ্বৰে কিহৰ কাৰণে বিলিভ 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 বাৰ বাৰ ঈশ্বৰে আমাক ক'বলৈ বিচাৰি আছে হালেলুয়া তো আমি চাও আমি বহুতো বিশ্বাসী বিলাকে মই যেনেকৈ ক'লো এই সময়ত অতি সহজ আমি ভাবিলো হয় মই বিশ্বাস কৰোঁ just now when I asked the people then they said right that yes we believe হয় মই বিশ্বাস কৰোঁ সকলোৱে ক'ব যে হয় মই বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু বিশ্বাস কৰাৰ পিছতো কেলে আমি হৰা জীৱন জীয়াই আছো परमेश्वर को विश्वास करने का बावजूद भी हम लोग किस लिए एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं That is the question that परमेश्वर को जानने के बाद भी हम लोग किस लिए हारा हुआ जीवन जी रहे हैं परमेश्वर को विश्वास करने के बाद भी हम लोग किस लिए हारा हुआ जीवन हम लोग जी रहे हैं किहर কাৰণে আমি এটা হৰা জীवन জীয়াই আছো যিশুক জনাৰ পিছতো কিয় জানেনে কাৰণ আমি বহুতো ক্ষেত্ৰত ইগনোৰ কৰোঁ বহুতো ক্ষেত্ৰত আমি সাৱধান নহওঁ ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ লগত ঈশ্বৰৰ সত্য বাক্যৰ লগত আমি সাৱধান নহওঁ আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্যটো আমি বহুতো সময়ত ইগনোৰ কৰোঁ আৰু সেই ইগনোৰ কৰাৰ কাৰণে আৰু সেই সাৱধান নোহোৱাৰ কাৰণে কি হয় শয়তানৰ কাৰণে সেইটো এটা অস্ত্ৰ হৈ যায় যি অস্ত্ৰৰ যোগেদি শয়তানে আমাক এটেক কৰিবলৈ সাহস পায় কাৰণ সেইটো তাক ঈশ্বৰে দিয়া নাই তাক কোনে দিছে আমি দিছো কাৰণ কেলে তোমাৰ ইগনোৰেন্স তোমাৰ আনএৱেৰনেছ সেই বস্তুটোৰ কাৰণে কি হৈছে শয়তানক তুমি নিজে দিছা যেতিয়া মই কওঁ এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত যে ইগনোৰেন্স কি হয় যে এৱেৰনেছ নোহোৱাটো কি হয় সেই বস্তুটো আজি জানিব লাগিব আমি কেনেকুৱা দেখা পাই সেই বস্তুটো ইগনোৰেন্স সেইটোৱে হয় যে যেতিয়া আমি কওঁ ইটস ওকে আজি প্ৰাৰ্থনা নকৰিলো ইটস ওকে মই যদি বাইবেল নপঢ়ো ইটস ওকে মই যদি ৰিল চাবলৈ পাৰোঁ ইটস ওকে মই যদি মানুহৰ লগত 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা কথা পাতিবলৈ পাৰোঁ you know আমি ধ্যান নকৰোঁ আমি ৰিলছ যেতিয়া চাওঁ ন ৰিলছত লিখা থাকে ন কিছুমান ৰাইটিং কোটেশন থাকে ৰাইট তো সেইবিলাক পঢ়িবলৈ আমি ধুনীয়াকৈ পাৰোঁ but word আমি পঢ়িবলৈ নোৱাৰোঁ because বাইবেলটো পঢ়িলে আমি টায়াৰ্ড হৈ যাওঁ বাইবেলটো পঢ়িলে আমি লেজি হৈ যাওঁ আহা ইন্টাৰেষ্টিং লগা নাই বাইবেলটো পঢ়িবলৈ কিন্তু যেতিয়া ফোনটো অন কৰি কেনে ৰিলছবিলাকত লিখা থকা কোটেশনবিলাক আমি পঢ়োঁ ইট মেক্স আছ so active to watch more and more and more right and do you know what is the prayer প্ৰাৰ্থনা কি হয় জানেনে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা হৈছে ঈশ্বৰৰ লগত কথা পতা but you know ঈশ্বৰৰ লগত প্ৰাৰ্থনাত বহিবলৈ বহুত বেছি আলসি লাগে প্ৰাৰ্থনাত সময় কটাবলৈ একদম মন নাযায় but with a special person with a loved one we can talk hours and hours see can you see যেতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ বহিব লাগে তেতিয়া আমি নোৱাৰো বহিবলৈ 5 minutes is so much for us 10 minutes বহুত বেছি প্ৰাৰ্থনা কৰিলো কিন্তু যেতিয়া আমি বেলেগৰ লগত ফোনত কথা পাতিব লগা হয় তেতিয়া হলে আমি 1 ঘণ্টা কিটা গুছি গল 2 ঘণ্টা কিটা গুছি গল আমি একদমই বৰ নহওঁ কেলে বৰ নহওঁ
এনজয় কেলে জানা যেটো তুমি শুনিবলৈ ইচ্ছা কৰিছা সেইটো কৈ আছে যে যেটো তুমি ক'বলৈ বিচাৰিছা সেইটো শুনি আছে যে তুমি শুনিব বিচাৰা তুমি ক'ব বিচৰা কথাটো কৈ আছে যে তো সেইটো কাৰণে কি হয় যে we enjoy that conversation সেই কথাটো আমি এনজয় কৰোঁ but we don't understand that will not benefit in our life সেইটো আমাক একো বেনিফিট নিদিয়ে সেইটোৱে হৈছে যে আমাৰ ইগনোৰেন্স যেটো আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব নোৱাৰো কিন্তু মানুহৰ লগত ঘণ্টা ঘণ্টা আমি কথা পাতিবলৈ পাৰো আমি বাক্য পঢ়িবলৈ নোৱাৰো কিন্তু আমি মোবাইলৰ ৰিলছ বিলাক ঘণ্টা ঘণ্টা আমি চাবলৈ পাৰো that is called our ignorance that is called our unawareness আৰু তৃতীয়তে আমাৰ unrenewed mind why কেলে আমাৰ মাইন্ডটো ৰিনিউড নহয় কেলে আমাৰ মাইন্ডটো আনৰিনিউড হয় কাৰণ আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যটো ইগনোৰ কৰোঁ ঈশ্বৰৰ বাক্যটোৰ লগত আমি সাৱধান নহওঁ সেইটো কাৰণে কি হয় ঈশ্বৰৰ বাক্য আমাৰ জীৱনত কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু শয়তানে আমাৰ জীৱনত ধুনীয়াকৈ কাম কৰি দিয়ে that is the reason বিশ্বাস কৰাৰ পিছতো আমি কেলে এটা হৰা হোৱা জীৱন জীয়াও বিশ্বাস কৰাৰ পিছতো হৰা হোৱা জীৱন এইটো কাৰণে আমি জীয়াও কাৰণ আমি বাইবেল ইগনোৰেন্ট কৰোঁ প্ৰাৰ্থনা ইগনোৰ কৰোঁ আমি নিজৰ মাইণ্ডটো আমি নতুন কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ সেইটো কাৰণে কি হৈ যায় আমি সত্যটো দেখিবলৈ নাপাওঁ হালেলুয়া you all God's people God is talking to you or not ইচ্ছা আপোনালোক কথা পাতি আছে নে নাই কাৰণ that is true fact right এইটো কথা কি হয় সঁচা হয় কাৰণ ঈশ্বৰে কৈছে ন যে সকলোবিলাক বস্তু সম্ভৱ হ'ব তাৰ কাৰণে যিসকলে বিশ্বাস কৰে বুলি কৈছে আমি বাইবেল ভাৰ্চটো চাম মাৰ্ক 9:23 মাৰ্ক 9:23 এডৰ লিখিছে যে Jesus said to him if you can believe all things are possible to him who believes কৈছে এতিয়া মই অসমীয়া পঢ়ি দিম আপোনালোকে আজি ভালকে শুনিব যিসকলে অসমীয়া বহুত ভাল পায় তেতিয়া যিশুৱে তেওঁক ক'লে যদি পাৰে বুলি ক'লা যে বিশ্বাস কৰা জনৰ বাবে সকলো সম্ভৱ বুলি কৈছে হালেলুয়া ইয়াতে কৈ আছে আমাক যে বিশ্বাস কৰা জনৰ বাবে সকলো সম্ভৱ তো আমি ইয়াতে থকা লোকসকলে বহুতে বিশ্বাস কৰোঁ I am a child of God I am a more than a conqueror I am an overcomer we all believe right but still why do we live a defeated life কিন্তু কেলে আমি হৰা হোৱা জীৱন জীয়াও জনাৰ পিছতো কেলে কাৰণ ইয়াতে ঈশ্বৰে সেইটো কোৱা নাই যে বিশ্বাস কৰা জনৰ বাবে সকলো সম্ভৱ কৈছে ইংলিছত চালে আপোনালোকে বুজাম if you can believe all things are possible to him who believes বুলি কৈছে but ইয়াতে কোৱা নাই who in faith can you see যোনে ফেইথত আছে কৈছে তাৰ কাৰণে সকলো সম্ভৱ কৈছে নে যোনে বিলিফত আছে তাৰ কাৰণে সকলো সম্ভৱ বুলি কৈছে সকলোৱে ক'ব জোৰকে বিলিভ আৰু এবাৰ বিলিভ yes ইয়াতে কৈছে যে সকলো সম্ভৱ তেওঁৰ কাৰণে যিজনে কি কৈছে বিশ্বাস কৰে বুলি কৈছে তো আমিতো বিশ্বাস কৰোঁ হয় নে নহয় বিশ্বাস কৰাৰ পিছতো আমাৰ জীৱনত কেলে অসম্ভৱ হৈ থাকে বিশ্বাস কৰাৰ পিছতো আমাৰ জীৱনত কেলে অসম্ভৱ বস্তুবিলাক আমি হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ because of this reason only because of this reason right এইটো ৰিজনৰ কাৰণে কি হয় আমি জানিব লাগিব যে ইয়াতে কি মানে কি বিশ্বাসৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছে যেটো বিশ্বাসত আমাৰ দুৰ্বল হৈ আছে আৰু সেই দুৰ্বল হোৱাৰ কাৰণে আমি সেই বস্তুটো আমাৰ জীৱনত হোৱা দেখা নাই আৰু হেতু কাৰণে আমি হৰা হোৱা জীৱনটো জীয়াই আছো তো সেই বিশ্বাসটো আজি আমি চাবলৈ বিচাৰিম ওকে আপোনালোক সকলো ৰেডি আছে নে চাবলৈ কি বিশ্বাসৰ কথা ইয়াতে ক'বলৈ বিচাৰিছে যেটো বিশ্বাসে আমাক জানে কাৰণ বাইবেলে কৈছে যে বিশ্বাসৰ দ্বাৰা সকলো সম্ভৱ হয় কিন্তু সকলো সম্ভৱ হয় যদি কি আছে যেটো বিশ্বাস কৰাৰ পিছতো আমাৰ জীৱনৰ সম্ভৱ হোৱা নাই কাৰণ বাইবেলে কয় সকলো সম্ভৱ সেইজনৰ কাৰণে যিজনে বিশ্বাস কৰে ওকে তো আমি এটা ষ্টৰী সকলো জনা ষ্টৰী হয় যেটো বাইবেলৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ বেথানিত এটা ফ্যামিলি আছিলে যেটো ফ্যামিলিক যিশুৱে বহুত ভাল পাইছিলে আৰু বহুত প্ৰেমো কৰিছিলে আৰু এই ফ্যামিলিটো হৈছিলে লাজাৰাছ মেৰি এণ্ড মাৰ্থা ৰাইট তো
তো যীশুৱে সেই পৰিয়ালটো বহুত ভাল পাইছিলে আৰু তেওঁলোকে বেথনিত থকা এটা ফেমিলি আছিলে আপোনালোকে যেতিয়া বাইবেলত চাব আপোনালোকে জন 11 চেপ্টাৰ পুৰা জনৰ 11 চেপ্টাৰটোত আপোনালোকে সেই ষ্টৰিটো পাব যিটো বস্তুটো মানে বাইবেল জিজাছৰ কি আছিলে প্ৰিয় মানে এজন প্ৰিয় ফেমিলি আছিলে যাৰ ফেমিলিটোক যীশুৱে মৰম কৰিছিলে যাৰ ফেমিলিটোক যীশুৱে প্ৰেম কৰিছিলে হালেলুয়া তো সেই ফেমিলিটোৰ কথা আমি চাম ইয়াতে মই বুজাব বিচাৰিছোঁ যে কি বস্তু হয় বিশ্বাস কৰাৰ পিছতো আমি আমাৰ জীৱনত সম্ভৱ হোৱা দেখা নাপাওঁ অ'কে তো ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে লাজৰাছ যিজন মাৰ্থা আৰু মেৰীৰ ভাই আছিলে সি বেমাৰ নৰিয়া হৈ পৰিছিলে বেমাৰ হৈছিলে তো বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে কি কৈছিলে যীশুৰ তাতে যীশুক মানে খবৰ দিব দিছিলে যে তোমাৰ বন্ধু তোমাৰ ভাই তোমাৰ প্ৰিয়জন বেমাৰ হৈ আছে বুলি কৈছিলে কিন্তু যেতিয়া যীশু সেই খবৰ পাইছে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে যীশু নগ'ল কিন্তু দুদিনৰ পিছত গ'ল বুলি বাইবেলত লিখা আছে তাৰপিছত যেতিয়া যীশু গ'ল সেই নগৰখনত যেতিয়া যীশু গ'ল লাজৰাছৰ তাক খবৰ ল'বলৈ তেতিয়া অলমষ্ট 4 দিন হৈ গৈছিলে তাক মৈদাম দিয়াটো অলমষ্ট 4 দিন হৈ গৈছিলে যেটো বস্তু তাক অলৰেডি মৈদাম দিয়া হৈ গৈছিলে তাৰপিছত যীশু যায় তেতিয়াই পাইছিলে যেতিয়া অলৰেডি তাক মানে মৈদামত থৈ দিয়া হৈছিল যোনটো কব্ৰ বুলি কয় হিন্দীত কব্ৰ কয় তো সেই বস্তুটো অলৰেডি তাক থৈ দিয়া হৈছিলে অলৰেডি তাক ঢালি দিয়া হৈছিলে সেই 4 দিনৰ পিছত যীশুৱে আহি পাইছিলে আৰু যেতিয়া যীশু আহি পাইছিলে অবভিয়াছলি দ্যাট ইজ ফৰ শিওৰ দ্যাট তাৰ ফেমিলি সকলোৱে কান্দি আছিলে দুখত আছিলে ৰাইট কিন্তু তেতিয়া যীশুৱে কি কৈছে তেওঁলোকক যদি তুমি বিশ্বাস কৰা ঈশ্বৰৰ মহিমা তুমি দেখিবলৈ পাবা হালেলুয়া আমি চাম বাইবেল ভাৰ্ছটো জন 11:40 this bible verse John 11:40 it is written that Jesus said to her Did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? So, অসমীয়াত যেতিয়া চাওঁ তেতিয়া মই কৈছে লেখা আছে যীশুৱে তেওঁক ক'লে মই জানো তোমাক কোৱা নাছিলোঁ যদি বিশ্বাস কৰা তেনেহ'লে ঈশ্বৰৰ মহিমা দেখিবলৈ পাবা Do you know? মাৰ্থা কি ৰিপ্লাই কৰিছিলে মাৰ্থাই কৰিছিলে যে হয় প্ৰভু তুমি যিহকে প্ৰাৰ্থনা নকৰা কিয় ঈশ্বৰে পিতৃ ঈশ্বৰে উত্তৰ দিয়ে বুলি কৈছিলে তুমি যিহকে প্ৰাৰ্থনা নকৰা কিয় পিতৃ ঈশ্বৰে তাক শুনে বা তাক কৰে বুলি তাই ৰিপ্লাই দিছিলে কিন্তু যেতিয়া যীশুৱে তাইক কৈছিলে ন যে তুমি যদি বিশ্বাস কৰা এই বাক্যটো যিহেতু মই জানো তোমাক কোৱা নাছিলোঁ যদি বিশ্বাস কৰা তেনেহ'লে ঈশ্বৰৰ মহিমা দেখিবলৈ পাবা যদি বিশ্বাস কৰা তেনেহ'লে ঈশ্বৰৰ মহিমা দেখিবলৈ পাবা বুলি কৈছিলে তাৰপিছত মেৰী ইন দ্যাট চিটুৱেশ্যন না সেইটো পৰিস্থিতিত আমি যেতিয়া মেৰীক চাওঁ যেতিয়া যীশু এই মেৰীক কৈছিলে কোৱা সময়ত নিশ্চয় মেৰীয়ে ইমান ভালকৈ বুজা নাছিলে কাৰণ কেলে যেতিয়া মানুহ কান্দোনত থাকে যেতিয়া মানুহ দুখত থাকে মানুহ মানে এজন মানুহে আনজনক কি কয় আমি ইমান ধ্যান দিবলৈ নোৱাৰোঁ কাৰণ কেলে আমাৰ মনত দুখ থাকে কাৰণে আমাৰ মনটো মানে বেদনাত থাকে কাৰণে কি হৈছে কোনোবা মানে এনকাৰেজিং ৱৰ্ড ক'লেও চামটাইম কি হৈছে আমি সেই বস্তুটো ইমান ধ্যান নিদিওঁ আমি সেই বস্তুটো ইমান কনচেনট্ৰেট কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ কেলে কাৰণে কাৰণ মনত দুখ থকাৰ কাৰণে আৰু সেই সময়ত তাইৰ লগতো হৈছিলে যে তাই নিশ্চয় কান্দি আছিলে তাই নিশ্চয় যীশুৱে যেতিয়া তাইক ক'লে এইটো কথা যে কোৱা নাছিলোঁ জানো যে যদি তুমি বিশ্বাস কৰা ঈশ্বৰৰ মহিমা তুমি দেখিবা কাৰণ যীশুৱে হৈছে জীৱন আৰু যীশুৱে হৈছে পুনৰুত্থান আমেন কাৰণ যীশুৱে জীৱন যীশুৱে পুনৰুত্থান বুলি কৈছে কিন্তু মৰিয়মে শুনি পেলাই তাই ৰেছপন্স দিছে কি হয় মই বিশ্বাস কৰোঁ যে তুমি যিহকে খুজিবা পিতৃ ঈশ্বৰে তাকেই তোমালৈ কৰিব তো তেতিয়া এইটো কথাটো হৈ গ'ল তাই ক'লে যীশুৱে ক'লে যদি বিশ্বাস কৰা তাৰ কাৰণে সকলো সম্ভৱ তেতিয়াহ'লে এতিয়া যীশুৱে তাইক কয় যে মানে যোনটো লাজৰাছৰ যোনটো মৈদাম দিয়া হৈছিলে সেই মৈদামৰ আগত থকা পাথৰটো আঁতৰাই দিয়া বুলি কৈছে কিন্তু মৰিয়মে কি ৰিপ্লাই দিয়ে মৰিয়মে কৈছে প্ৰভু দুৰ্গন্ধ ওলাইছে বা দুৰ্গন্ধ ওলাব কাৰণ তাক ৰখা 4 দিন হৈ গ'ল কিন্তু যীশুৱে তাইক সেইটোৰ কাৰণে খুলিব দিয়া নাছিলে যীশুৱে চাগে ক'ব বিচাৰিছিলে আৰে গোন্ধটোৰ কাৰণে মই খুলিব দিয়া নাই কিন্তু মই খুলিব দিছোঁ যাতে সেই মৃত্যুটোক মই জীয়াব পাৰোঁ হালেলুয়া কাৰণ সেই গোন্ধ যে ওলাব সেইটোৰ কাৰণে যীশু খুলিব দিয়া নাছিলে কিন্তু যীশুৱে খুলিব দিছিলে যে মই তাক মৃত্যুৰ পৰা জীয়াই উঠিব পাৰোঁ বুলি কিন্তু মৰিয়মক চাওক ইয়াতে আমি মৰিয়মক কি দেখাব মৰিয়মেতো ধুনীয়াকৈ কৈছে যে হয় প্ৰভু মই বিশ্বাস কৰোঁ তুমি প্ৰাৰ্থনা যিহকে কৰিবা তাকে ঈশ্বৰে কৰিব বুলি
ৰাইট বিশ্বাসটো আমি এতিয়া দেখা পাইছোঁ ৰাইট বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণেতো তাই ক'বলৈ পাৰিছে কিন্তু বিশ্বাসটোত একশ্যনটো দেখা পাইছে আপোনালোকে একশ্যন আছে তাতে তাইৰ পৰা একো একশ্যন নাই কিন্তু তাই অকল বিলিভটোত আছে কি য়েছ আই বিলিভ জিজাছ কেন ডু বাট যেতিয়া যীশুৱে ক'লে একশ্যন মৈদামটো খোলা তাক মই মৃত্যুৰ পৰা জিলাম কিন্তু একশ্যন কৰাতে মই তাই কি কয় প্ৰভু 4 দিন হৈ গ'ল গোন্ধাই গৈছে তো আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাওঁ কৈতো কিবা আছে কিন্তু একশ্যনটো কিবা হৈ আছে চাওক তো ঠিক সেইদৰে বিশ্বাস শুনিবলৈ বহুত ভাল লাগে বিশ্বাসৰ কথা মই ইয়াতে কৈছিলোঁ যাক সুধিলে ক'ব মেৰা বিশ্বাস হে মই বিশ্বাস কৰতি হু চবেই ক'ব ইয়াতে থকা লোকসকলে কিন্তু বিশ্বাসটো ইয়াতে কি দেখা পাইছোঁ মৰিয়মৰো বিশ্বাস আছিলে কিন্তু মৰিয়মৰ কি নাছিলে কাম নাছিলে একশ্যন নাছিলে তাতে ছেম থিং সেইটো মই বুজাব বিচাৰিছোঁ যে বিশ্বাসৰ কথা আমি চবেই কওঁ কিন্তু যেতিয়া আহি যায় একশ্যনৰ কাম তেতিয়া আমি কি হৈ যাওঁ হাৰি যাওঁ তেতিয়া আমাৰ একশ্যন কাৰণ তাইওতো বিশ্বাস কৰিছিলে ৰাইট যে তুমি যিহকে প্ৰাৰ্থনা কৰিবা তাকে ঈশ্বৰে কৰিব কিন্তু তাৰো কৈছিলে যে যীশুৱে কৈছিলে তাইক যে তুমি যদি বিশ্বাস কৰা ঈশ্বৰৰ মহিমা দেখিবা কিন্তু সেই বিশ্বাসটোত একশ্যন কাৰ আছিলে মৰিয়মৰ আছিলে যদি মৰিয়মে বিশ্বাস কৰি কেনে যদি সেই অলৰেডি জিজাছে কৰি দিলে বাট ইট ৱাজ হাৰ একশ্যন বাট চি ডিডন্ট তাই নকৰিলে কিন্তু যীশু কোৱা পিছতহে তাই সেই কামটো কৰিলে কিন্তু তাই নিজৰ ফালৰ পৰা কৰা নাছিলে কিন্তু যেতিয়া তাই নিজৰ ফালৰ পৰা কি কৰিছিলে যে নুখুলিব কাৰণ সেইটো গোন্ধাই গৈছে কিন্তু যীশুৱে তাই কৈছিলে যে খোলা কাৰণ মৃতজনক মই জীয়াব লাগে বুলি তো ঠিক সেইদৰে আমাৰ জীৱনতো আমাৰ বহুতৰে ফেইথ আছে এণ্ড ডু ইউ ন' হোৱাট ইজ দ্য ফেইথ ফেইথটো আপোনাৰ লগত একো কাম নাই ফেইথটো ঈশ্বৰৰ পৰা অহা এটা আশীৰ্বাদ হয় এটা গিফ্ট হয় ফেইথ ইজ এ গিফ্ট ফেইথটো গিফ্ট হয় ইয়াতে থকা সকলো ব্যক্তিৰ লগত বিশ্বাস আছে কিন্তু আপোনালোকৰ ক'ত কমজোৰ হৈ আছে জানে কৰ্মত একশ্যনত লেগ হৈ আছে আৰু বিকজ অফ দেট একশ্যন না আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য কোৱা নিচিনাকৈ যদি তুমি বিশ্বাস কৰা ঈশ্বৰৰ মহিমা দেখিবা আমাৰ বিশ্বাসটো এনেকৈ হৈ আছে বিশ্বাসটো কৰোঁ কিন্তু ঈশ্বৰৰ মহিমা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই Why? Because আমাৰ একশ্যন নাথাকাৰ কাৰণে হালেলুয়া কাৰণ ঈশ্বৰে কৈছে সকলো চাওক আমি যেতিয়া চাওঁ আমি যেতিয়া চাওঁ বাইবেল ভাৰ্চতে লিখা আছে যে all things are possible to him who believes বুলি কোৱা আছে মানে সকলো বস্তুবিলাক সম্ভৱ বুলি কৈছে কাৰ কাৰণে যিসকলে বিশ্বাস কৰে বুলি কৈছে কিন্তু যদি আমাৰ বিশ্বাসে নাই এইটো বিশ্বাসটো মই যোনটো কৈ আছোঁ ন ইন ইংলিছ ইট ইজ বিলিভ অ'কে যদি আমাৰ বিলিফে নাই ফেইথটোৰ কোনো মূল্য নাই কাৰণ ফেইথটো অলৰেডি সেইটো ঈশ্বৰৰ পৰা দিয়া যোনটো আমি স্পিৰিট অফ ফেইথ কওঁ যোনটো ঈশ্বৰৰ আত্মা হয় তাৰ যোগেদি সেই বিশ্বাসৰ আত্মাটো আমি পাইছোঁ যিটো সকলোকো ঈশ্বৰে দিছে কিন্তু সেই বিশ্বাসটোত যদি আমাৰ বিলিভ নাই সেই ফেইথটোত যদি আমাৰ বিলিভ নাই তেতিয়াহ'লে সেই ফেইথটো কোনো ভেলিড নাই সেই ফেইথটো একো কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ বিলিভটো আমাৰ একশ্যন হয় ফেইথটো ঈশ্বৰৰ একশ্যন হয় হালেলুয়া কাৰণ বাইবেলত আমি বহুতো ষ্টৰী দেখিবলৈ পাওঁ য'ত আমি জানো য'ত আমি দেখোঁ যে বহুতো বিশ্বাসীবিলাকে মানে এনেকুৱা এটা ষ্টৰী আছে বাইবেলত য'ত এনেকুৱা এটা পৰিয়াল আছিলে যাৰ এটা সন্তানক বেয়া বস্তুৰ লগত মানে বেয়া আত্মাই ধৰা বেয়া আত্মাৰ লগত ধৰা এজন মানে ল'ৰা আছিলে তো তাৰ পিতৃয়ে কি কৰিছিলে যীশুৰ আগত অনাৰ আগতে তাৰ যিবিলাক চেলা আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত নিছিলে বাট নিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে ভূতটো খেদাবলৈ নোৱাৰিলে তো তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে যীশুৰ ওচৰত আহি পেলাই তেওঁক ক'লে আমি চাম কি কৈছে যীশুৱে সুধিলে যে তাৰ কি হৈছিলে বুলি ৰাইট আমি এটা দেখিবলৈ পাওঁ যীশুৱে ল'ৰাজনক দেউতাক সুধিলে ইংলিছত যিসকলে পঢ়িব পাৰে পঢ়ক মই অসমীয়াতে পঢ়ি দিছোঁ যীশুৱে ল'ৰাজনৰ দেউতাকক সুধিলে ইয়াৰ এনে অৱস্থা হোৱা কিমান দিন হ'ল তাতে তেওঁ ক'লে শিশুকালৰে পৰা হৈছে আৰু এই আত্মা তাক নষ্ট কৰিবলৈ বাৰে বাৰে জুই আৰু পানীত পেলায় কিন্তু আপুনি যদি কিবা কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আমালৈ কৃপা কৰি উপকাৰ কৰক তেতিয়া যীশুৱে তেওঁক ক'লে যদি পাৰে বুলি ক'লা যে কেতিয়াবা ভালকৈ পঢ়িছেনে যদি পাৰে বুলি ক'লা যে বিশ্বাস কৰাজনৰ বাবে সকলো সম্ভৱ এটা কুৱেশ্যন ৰাইট সি কৈছে যদি পাৰা ইন ইংলিছ ইউ কেন চি ইফ ইউ কেন ৰাইট ইফ ইউ কেন ডু ৰাইট
ইয়াতে মানে সি ঈশ্বৰক মানে এনেকুৱা হৈছে আমাৰ মানে সি সুধিছে মানে লাইক হি ইজ কুৱেশ্যনিং এবাউট দ্য এবিলিটি অফ গড ঈশ্বৰে যে পাৰে যে তাৰ ওপৰত সি কুৱেশ্যন কৰিছে আমি যেনে কেতিয়াবা কওঁ ন ঈশ্বৰৰ বা ইচ্ছা আছেনে নাই ঈশ্বৰে বা কৰিবনে নাই परमेश्वर को हम लोग कभी कभी पूछते रहे परमेश्वर का इच्छा है कि नहीं परमेश्वर बा करेगा कि नहीं राइट बट बाइबल सेज दैट all things are possible but not through faith okay but through belief not through faith but through belief all things are possible amen तो याते এইজন ব্যক্তিয়ে যীশুৰ এবিলিটিৰ ওপৰত হি কুৱেশ্যন কৰিছিলে যে যদিহে তুমি পাৰা তেনেকৈ বহুতো বিশ্বাসী আছে যিসকলে যীশুক কয় যে যদি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা হয় ৰাইট যদি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা হয় বাইবেল ভাৰ্চে ভাবিব নালাগে যে কালি লগ পাম বা কালি আমি সহভাগিতা পাম মই সেইটো বিষয় কোৱা নাই এইটো কুৱেশ্যনিং এবাউট যে ঈশ্বৰে আমাৰ সুস্থতাৰ কাৰণে বা ইচ্ছা কৰে নে নকৰে ঈশ্বৰে মোৰ পৰিস্থিতিটো বা সলনি হোৱা ইচ্ছা কৰে নে নকৰে ঈশ্বৰে বা বিচাৰে নিবিচাৰে যে মই উদ্ধাৰ হোৱাটো মুক্তি হোৱাটো এইটো বেমাৰৰ পৰা বিকজ আই হেভ হাৰ্ড ছাম পিপল ছেইং অ'কে মই শুনা পাইছোঁ কিছুমান মানুহ কয় এই বেমাৰটো ঈশ্বৰেই দিছে আৰু ঈশ্বৰেই নিব ৰাইট বহুত লোকসকলক আমি শুনা পাওঁ যে এই বেমাৰটো ঈশ্বৰে দিছে আৰু ঈশ্বৰে নিব কিন্তু ঈশ্বৰে ইয়াতে কি কৈ আছে তোমাৰ ৰেছপন্সিবিলিটি আছে তোমাৰ একশ্যন আছে তোমাৰ ৰেছপন্স আছে বিলিভটো তোমাৰ ৰোল হয় বিলিভটো তোমাৰ একশ্যন হয় বিলিভটো তোমাৰ ৰেছপন্স হয় ঈশ্বৰক সেইটো যদি কৰা ঈশ্বৰে কৈছে সকলো বস্তুবিলাক কি কৰিব বুলি কৈছে সম্ভৱ কৰিব বুলি কৈছে হালেলুয়া তাৰমানে ঈশ্বৰে সকলো বস্তু কৰিব পাৰে অ'কে এই যেতিয়া ঈশ্বৰে কয় ন দেট অল থিংছ ৰাইট অল থিংছ মিনছ এভৰিথিং okay all things means everything all thing এনেকুৱা নহয় যে এইখিনি ঈশ্বৰে কৰিব পাৰে এইখিনি ঈশ্বৰে কৰিব নোৱাৰে মই বাৰবাৰ কৈ থাকো একচুয়ালি ফাস্টিংতো যে all things মানে all things let's say together all things means all things yes সকলো মানে সকলো তো তেতিয়া হলে তোমাৰ সুস্থতা आपका चंगाई आपका डिलीवरेंस आपका मुक्ति आपका उद्धार आपका मैरिज आपका स्टडी आपका गुड हेल्थ आपका परिवार में शांति वो सब परमेश्वर का इच्छा है हालेलुया आमेन सब परमेश्वर का इच्छा है लेकिन उसमें एक ही कमी है जो हमारा रिस्पॉन्स है जो हमारा रोल टू बी प्ले है वो हम लोग नहीं करते हैं इसीलिए हम लोग परमेश्वर ने जो कहा है कि सारा चीज़ परमेश्वर के लिए संभव है लेकिन इसमें हमारा कमी है जिसके कारण से वो संभव चीज़ों को होते हुए हम लोग नहीं देख पाते हैं संभव परमेश्वर के लिए हर एक चीज़ है लेकिन हम लोग होते हुए नहीं देख पाते और मालूम है विश्वास में होते हुए भी हम लोग नहीं देख पाते इन फेथ राइट इन फेथ हम लोग विश्वास में होते हुए भी परमेश्वर का हर एक योजना हर एक काम को जो हमारे लिए प्रभु ने कहा है कि चंगाई परमेश्वर का इच्छा है गरीबी जीवन प्रभु का इच्छा नहीं है उद्धार यीशु का इच्छा है पापों से मुक्ति यीशु का इच्छा है उसको हम लोग नहीं देख पाते किस लिए क्योंकि हम लोग हमारा जो रोल है जो हम लोग का रिस्पॉन्स है उस वचन के साथ उसको हम लोग नहीं करते और नहीं करने का कारण से क्या होता है हम लोग परमेश्वर का कामों को अपना जीवन में जो बोला है परमेश्वर ने कि हर चीज़ें परमेश्वर के लिए संभव है लेकिन परमेश्वर ने नहीं कहा है उन लोगों को कि दोज हु आर इन फेथ ओके इन फेथ में नहीं बोला है लेकिन बोला है दोज हु आर इन बिलीव बोला है हालेलुया ये चीज़ को आप लोग अच्छे से जान लीजिए क्योंकि फेथ एंड बिलीव इज टू डिफरेंट थिंग ओके फेथ जो परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है लेकिन बिलीव जो है वो हम लोगों का रिस्पॉन्स परमेश्वर के लिए है जो एक्शन बोलता है हालेलुया जो एक्शन है तो वो हम लोगों का क्या है हम लोगों को यीशु के लिए एक्शन करना पड़ेगा वचन तो बोल दिया गया है लेकिन उस वचन को हम लोग एक्शन कैसे करेंगे जब हम लोग बिलीफ में चलेंगे नॉट इन फेथ बट इन द बिलीफ बिकॉज एवरी पर्सन those who are sitting here everyone has faith सबके पास फेथ है सबके पास फेथ है क्योंकि वो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है तो इसलिए मत बोलो किसी का फेथ ज़्यादा किसी का फेथ कम फेथ सबको दिया गया जो यीशु मसीह के पास था ना वही फेथ आप लोग को भी दिया गया है जो आत्मा विश्वास का है वो आत्मा हमें भी दिया गया है लेकिन यीशु मसीह सिर्फ इन फेथ में नहीं चलता था
लेकिन बिलीफ में चलता था। और वैसे ही आज हम लोग को सिखा रहे परमेश्वर के इन फेथ करते रहने से नहीं होगा, लेकिन इन बिलीव करना पड़ेगा। दैट मीन्स परमेश्वर ने कहा है तो उसको अभी तुम करो। हालेलुया। प्रभु কৰি দিছে, এতিয়া তোমালোকে কৰা। হালেলুয়া। তো সেইটো কাৰণে ঈশ্বৰে বিচাৰে যে তেওঁ অলৰেডি আমাক দি দিছে, তেওঁ অলৰেডি আমাৰ কাৰণে কৰি দিছে, আৰু ঈশ্বৰে কৈছে সকলো বস্তুবিলাক সম্ভৱ হ'ব, আৰু সকলো বস্তু সম্ভৱত আমাৰ ৰেছপন্সটো ঈশ্বৰে বিচাৰে। হালেলুয়া। কাৰণ আপোনালোকক মই এটা বস্তু ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে ইন ফেথ যে ইন ফেথ পাৰ্চনটো কেনেকুৱা হয়, ইন ফেথ বস্তুটো কেনেকুৱা হয় সেই বস্তুটো আপোনালোকে জানিব লাগিব, ৰাইট? ইন ফেথ আপোনালোকে যে খালি বিশ্বাস হয়, গিফ্ট হয়, বাট সেই বস্তুটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা সেই বস্তুটো আমি জানিব লাগিব যে বিশ্বাস দেখিবলৈ কেনেকুৱা। ইন ফেথত থকা মানুহবিলাক যিবিলাকে বিশ্বাসত আছে তেওঁলোক কেনেকুৱা। অ'কে, চাওক, যিসকল বিশ্বাস অকল থাকে ন, তেওঁলোক এনেকুৱা লোক হয় যিজনে বিশ্বাস কৰে যে যীশু সত্য ঈশ্বৰ হয়, যিজনে বিশ্বাস কৰে যে যীশুৱে আমাৰ কাৰণে উদ্ধাৰকৰ্তা হয়, যিজনে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁৱে ঈশ্বৰৰ সন্তান, যিজন আমাৰ বাবে উদ্ধাৰকৰ্তা হয়, যিজনে আমাক পাপৰ পৰা মুক্তি দিয়ে, জানে। আৰু তাৰপিছত এটা বাক্য কোৱা আছে যে ইফ ইউ কনফেছ উইথ ইউৰ মাউথ এণ্ড ইফ ইউ বিলিভ ইন ইউৰ হাৰ্ট জিজাছ ইজ ইউৰ লৰ্ড দেন ইউ শ্বেল বি ছেভড, ৰাইট? তো এইটোৱে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসত থকা লোকসকলে এইখিনি ভালকৈ জানে, আৰু তেওঁলোকে বিশ্বাসো কৰে যে যীশুৰ বাক্য কাম কৰে। তেওঁলোকে জানে যে ঈশ্বৰে বাক্য যি কয় সেইটো বস্তু আমাৰ জীৱনত কাম কৰে, আৰু তেওঁৰ বাক্য সত্য হয় এইটোও তেওঁলোকে জানে। যীশুৰ বাক্য সত্য হয়, যীশুৱে যে ঈশ্বৰৰ সন্তান হয়, যীশুৱে যে সকলো কৰিব পাৰে, তেওঁৰ বাক্য যি কয় তেওঁ তেনেকুৱাই কৰিব পাৰে, সেই বিশ্বাসীজনৰ সেইটো বিশ্বাস আছে। অ'কে, কাৰণ সেইটো কি কিবা কিবা দিব লগা হৈছে নেকি? ইয়াতে একো দিব লগা হোৱা নাই, খালি ৰিচিভহে কৰিছা। ইয়াতে একো দিয়া নাই, ইয়াতে কেৱল ৰিচিভ কৰিছা ইন ফেথ। সেই ইন ফেথটো ৰিচিভহে কৰিছা, তো ইয়াতে তুমি একো দিয়া নাই, কেৱল তুমি বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসটো কেনেকৈ? পবিত্ৰ আত্মাই বাইবেলত কি কৈছে? তুমি মোক মনোনীত কৰা নাই, কিন্তু মইহে তোমাক মনোনীত কৰিছোঁ। হালেলুয়া। তুমি মোক চুজ কৰা নাই, কিন্তু মইহে তোমাক চুজ কৰিছোঁ। হালেলুয়া। তুমি মোক মনোনীত কৰা নাই, কিন্তু মইহে তোমাক মনোনীত কৰিছোঁ। তো ইয়াতে আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ সেইটোৱে মই বুজাবলৈ বিচাৰিছোঁ। ইন ফেথ বিশ্বাস এইখিনি। আৰু সি জানে যে যীশুই আমাৰ কাৰণে মৰিল, যীশুই পুনৰ জীৱিত হৈ গ'ল, ৰাইট? আৰু সেইজন মানুহ ন যীশুক ফ'ল' কৰে। বাট ওৱান থিং, সেইজন মানুহে যীশুক ফ'ল' কৰে, আৰু সেইজন মানুহক আমি খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি ক'বও পাৰোঁ, বাট উই কেনট কল হিম আ বিলিভাৰ। We cannot call him a believer because believer एक्शन में चलता है, राइट? बिलीवर एक्शन में चलता है। विश्वासी विश्वास के द्वारा जीता है, राइट? एक क्रिश्चियन बिलीफ के द्वारा नहीं जीता, फेथ के द्वारा भी जी सकता है, जो क्राइस्ट को फॉलो करने वाला। लेकिन एक बिलीवर बिलीफ के द्वारा जीता है क्योंकि बिलीफ में काम होना चाहिए। हालेलुया। तो वैसे आज इस दुनिया में बहुत सारे विश्वासी हैं जो यीशु मसीह को विश्वास करता है, जो यीशु मसीह उद्धार करता है, ग्रहण करता है, और जितने लोगों ने भी ऐसे विश्वास रखा उनके बीच में विश्वास है। ओके, कंफ्यूज मत होना, उसके बीच में विश्वास है। लेकिन एक्शन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शन इज दिस थिंग, व्हाट एक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, मैं आप लोग को क्वेश्चन देती हूँ, सोच लीजिए कि क्या एक्शन के बारे में मैं आप लोग को बोल रही हूँ। जस्ट मेडिटेट। सो यहाँ पे एक है जो बिलीव नहीं है, मालूम हो गया ना आप लोग को? जो फेथ में है वो कैसा व्यक्ति है? जो विश्वास करता है कि यीशु उद्धार करता है, यीशु आया, यीशु जिया, यीशु मरा, यीशु जी उठा, उसका वचन सच है, उसका वचन में सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी उस आदमी का एक्शन नहीं है। हर विश्वासी, बहुत लोग ऐसे हैं, राइट? बिलीवर दे आर ऑलरेडी लाइक दिस। वो लोग ऐसे हैं बहुत सारे जो विश्वास करते यीशु मसीह में, जो विश्वास करते यीशु का सामर्थ्य में, जो विश्वास करते उसका वचन में, लेकिन वो लोग सिर्फ क्रिश्चियन ही रह गया। लेकिन वो लोग क्रिश्चियन से आगे नहीं गया। जो बिलीफ का काम होता है, हालेलुया, वो लोग जो बिलीफ का काम होता है उसमें वो लोग नहीं गया, लेकिन वो लोग सिर्फ क्रिश्चियन तक ही रह के गया, जो क्राइस्ट को फॉलो करने वाला। तो वो लोग, और ऐसे लोग क्या होता है मालूम है? हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी लोगों को, अरे ये व्यक्ति तो यीशु को विश्वास करता है, फिर भी क्यों घर में अशांति है?
ये व्यक्ति तो यीशु को विश्वास करता है फिर भी क्यों बीमार है, ये व्यक्ति तो यीशु को विश्वास करता है फिर भी क्यों उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ये व्यक्ति तो यीशु को विश्वास करता है फिर भी घर में क्यों शांति नहीं होता। सी देयर इज रीजन। देख पा रहे आप लोग अभी, राइट? विश्वास कैसा होता है? Every believer, that Christ follower, the Christians people, they believe everything, but still why they're living in this defeated life? लेकिन फिर भी किस लिए, কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে হৰাৰ জীৱন জীয়াই আছে? বিশ্বাসটো ইয়াতে কৰা সকলোৰ লগত আছে। মই কৈছোঁ ঈশ্বৰে দিয়া বৰদান, বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ, কিন্তু সেই বস্তুটোত বিলিভ নাই, একশ্যন নাই, আৰু সেই একশ্যনটো নাথাকাৰ কাৰণে আমি বেমাৰৰ পৰা ভাল পোৱা, আমি নিজৰ ঘৰত শান্তি, আমি নিজৰ জীৱনত জয়বন্ত জীৱন আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। কাৰণ বাইবেলে কৈছে যিসকলে যীশুক বিশ্বাস কৰে তেওঁসকলে জয়বন্ততকৈ অধিক বুলি কৈছে। जो परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करता है वो जीवन से भी बढ़कर है बोला है परमेश्वर ने, वचन में ऐसा कहता है। लेकिन फिर भी हम लोग सोच लेते कि हाँ ये वचन मेरे लिए है, लेकिन जीवन से बढ़कर उसको कहा जाता है जो जीतता है अपना जीवन में। आमेन, जो जीतता है अपना जीवन में। लेकिन हम लोग तो यीशु मसीह में रह के भी क्यों हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? खुद को पूछो, क्यों हम लोग बीमार में अभी भी है, क्यों हम लोग का घर में अशांति है? पूछो कि इसलिए हम लोग इस एरिया में चेंज होना चाहते हैं फिर भी चेंज नहीं हो पा रहे हैं। पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ओके, कोई चेंज भी हुआ है, कोई परमेश्वर में लगा हुआ भी है, बट देयर इज सम पीपल दोज हु आर नॉट, ओके। कोई है जो नहीं है, और जो नहीं है उसको परमेश्वर बात भी कर रहा है, और वो आप लोग समझ लो किससे परमेश्वर बात कर रहा है, क्योंकि प्रभु हम सभी से प्यार करता है, और प्यार करने का कारण से परमेश्वर चाहता है कि मेरे संतान तू, मैंने जो योजना तेरे लिए रखा है, मैंने जो प्लानिंग तेरे लिए किया है उसको तू समझ और उसको तू ले और तेरा जीवन के उन्नति के ओर तू जा। हालेलुया। लेकिन हम लोग उस उन्नति के ओर नहीं जा रहे हैं। किस लिए नहीं जा रहे? क्योंकि वी आर जस्ट ए क्रिश्चियन, यू आर जस्ट ए क्रिश्चियन but we are not a believer. But you know, people used to say that he is a believer, but that's not a believer. Believer उसी को बोला जाता है जो परमेश्वर के वचन को रिस्पॉन्स करते हैं, परमेश्वर के वचन में एक्शन करते हैं, उसको बोला जाता है believer। उसको नहीं बोला जाता जो विश्वास में है सिर्फ, क्योंकि विश्वास वचन में कहा है विश्वास कर्म के बिना, क्या बोला है? What is it? इन हिंदी का मरा हुआ, यस, इन मरा हुआ, বিশ্বাস কৰ্মৰ অবিহনে মৰা বুলি কৈছে। হালেলুয়া। বিশ্বাস কৰ্মৰ বিনে মৰা বুলি কৈছে। তাৰমানে বিশ্বাস, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ বিশ্বাস সকলোৰে লগত আছে, কিন্তু সেই বিশ্বাসটো যদি কাম নাই তেতিয়াহ'লে সদায় হৰা হোৱা জীৱন জীয়াবা। কিন্তু হৰা হোৱা জীৱনটো যদি জীয়াবলৈ নিবিচৰা তেতিয়াহ'লে আমি কি হ'ব লাগিব? সেই বিশ্বাসত আমি ৰেছপন্স কৰিব লাগিব, সেই বিশ্বাসত আমি একশ্যন ল'ব লাগিব। দেন উই উইল সি আ ভিক্টৰিয়াছ লাইফ। দেন এজ দ্য বাইবল সে ইউ আৰ দ্য অভাৰকামাৰ, ইউ উইল সি দ্যাট ইউ আৰ অভাৰকামিং every situation. Hallelujah. You will overcome every situation if you believe. Not in faith only, but if you believe. Faith with the action. Faith with the action. Then you will see the result of it. Hallelujah. एग्ज़ाम में सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता है, लेकिन एग्ज़ाम में पढ़ के जाके बैठ के एग्ज़ाम पेपर लिखना पड़ता है, तभी पास करते हैं। तो विश्वास भी ऐसा ही चीज़ है, तो सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, लेकिन परीक्षा में देना भी आना पड़ेगा। क्वेश्चन जैसा आते हैं उस क्वेश्चन का आंसर देना आना पड़ेगा। कैसे दोगे? अगर बीमारी आ रहा है तो परमेश्वर को कहना, उस बीमारी को आप लोग आंसर देना आना पड़ेगा कि यीशु मसीह के कोरे खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया। और जब गरीबी जीवन हम लोग देखते हैं तब हम लोग को बोलना आना पड़ेगा कि परमेश्वर गरीब बना क्रूस पे मेरे लिए, ताकि मैं उसका गरीबी जीवन के द्वारा मैं धनी बनूं। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने हर एक प्रतिज्ञा हमारे लिए करके रखा, हर एक आंसर क्वेश्चंस का देके रखा है, लेकिन जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो हम लोग फेल होते हैं। किस लिए? बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर। दैट्स नॉट द गॉड फॉल्ट, बट इट इज आवर फॉल्ट। परमेश्वर का गलती नहीं है, लेकिन इसमें हमारा गलती है, क्योंकि हम लोग सिर्फ फेथ को लेके बैठ गए, लेकिन विश्वास को, मतलब बिलीफ को हम लोग नहीं किया।
तो जितना भी विश्वासी यहाँ पे बैठे हुए हैं, परमेश्वर हम लोगों को चाहता है, और इसलिए परमेश्वर ये वचन कह रहा है आज, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कितने लोग यहाँ पे हैं जो चाहते हैं कि हमारे जीवन को बदले हुए हम लोग देखें, हम खुद को बदलते हुए देखें, परिवार में उन्नति होते हुए देखें, लेकिन वो चीज़ हम नहीं देख पा रहे। किस लिए? क्योंकि उसमें एक्शन नहीं है। तो आज वही जानो कि हम लोग सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए आया, यीशु मसीह मेरे लिए कोड़े खाया, यीशु ने मेरे लिए जी उठा, वो जानने से सिर्फ नहीं होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा है जो हम लोगों को करना है। और जब हम लोग उसको करेंगे तो हम लोग जैसे वचन में कहा है, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। और मैंने जैसे कहा है, इस ऑल थिंग में क्या है? सब कुछ। फिर से कहेंगे, सब कुछ। यस, हालेलुया। एंड डू यू नो द बिलीवर वी आर ना, हम लोग जो विश्वासी होते हैं, जो परमेश्वर का संतान लोग होते हैं, समटाइम आवर प्रेयर्स ना, हम लोग का प्रार्थना ही ऐसा होता है जिसलिए देखो, जो इंसान इन फेथ है ना, वो प्रार्थना करता है, ठीक है? जो इंसान इन फेथ है, क्योंकि जो यीशु में विश्वास किया वो तो प्रार्थना करेगा, है कि नहीं? ये भी जानना पड़ेगा। कोई कोई यहाँ पे बैठा है जो सोचेगा कि अरे मैं तो प्रार्थना करती हूँ फिर भी मेरा जीवन में क्यों नहीं होता, उसको भी जानना पड़ेगा। विश्वास तो है, राइट? प्रार्थना भी करते हो क्योंकि आप विश्वास करते हो, इसलिए आप प्रार्थना करते हो, लेकिन उस प्रार्थना का फल हर समय क्यों नहीं मिलता, वो भी हम लोग को जानना पड़ेगा। एंड यू नो दिस थिंग मी ऑल्सो, आई एम ऑल्सो लर्निंग। मैं भी सीख रही हूँ और मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहती हूँ जो मैंने सीखा है, जो परमेश्वर ने मुझे कहा है। प्रार्थना यहाँ पे बैठे हुए जितने भी विश्वासी हैं सब लोग करते हैं, क्योंकि आप लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, इसलिए आप लोग प्रार्थना करते हो। लेकिन प्रार्थना करने के बावजूद भी हम लोग उस फल को नहीं पाते जो परमेश्वर ने कहा है, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, राइट? फिर भी हम लोग नहीं पाते हैं। किस लिए हम लोग उसको नहीं पाते हैं? क्योंकि प्रार्थना हम लोग डर से करते हैं। कोई कोई यहाँ पे लोग हैं जो हम लोग विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन डर से करते हैं, और प्रार्थना करते हैं खुद का इच्छा के लिए, जो मैं चाहता हूँ वही हो, जो मैं चाहता हूँ परमेश्वर उसी को सुने, और डर से, क्योंकि ये परिस्थिति खराब दिख रहा है और किसी एरिया में मुझे बहुत डर है, तो इसलिए। लेकिन डर से क्या हुआ प्रार्थना, अपना इच्छा को क्या हुआ प्रार्थना, वो प्रार्थना का आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि उस प्रार्थना में बिलीफ नहीं है। डर से आप प्रार्थना कर रहे हो इसलिए कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, लेकिन उसमें आपका बिलीफ कुछ नहीं है। सिर्फ आप मालूम है कि यीशु प्रार्थना सुनता है, बस उतना ही मालूम है आपको। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो फिर भी आपको सब आंसर नहीं मिलता। इसलिए क्योंकि उसमें बिलीफ नहीं है आपका। दिल तो पूरा डाउट से भरा हुआ है, दिल तो पूरा डर से भरा हुआ है, दिल तो पूरा क्वेश्चन, मतलब जो मैं चाहता हूँ वही होना है। तो वो प्रार्थना करने से उस प्रार्थना का रिजल्ट हमारे जीवन में हम लोग नहीं देखेंगे, और वो प्रार्थना विश्वास करते हैं। और वो प्रार्थना करने का कारण से क्या होता है, हम लोग अपना जीवन में उत्तर को नहीं देख पाते, क्योंकि वी डू द प्रेयर, हम लोग सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बावजूद भी हम लोग प्रार्थना का उत्तर नहीं देखते। इसलिए मालूम है, हम लोग सब विश्वास करते हैं कि नहीं कि प्रार्थना में सामर्थ्य है। आप लोग विश्वास करते हो कि नहीं? आप लोग আপোনালোকে সকলোৱে বিশ্বাস কৰে যে প্ৰাৰ্থনা শক্তি আছে, ৰাইট? আছে নাই? ভয়ৰ লগত কৰা প্ৰাৰ্থনা, সন্দেহৰ লগত কৰা প্ৰাৰ্থনাৰ কিন্তু উত্তৰ নাই, কিন্তু উত্তৰ আছে ইফ ইউ প্ৰে ইন ফেথ। হালেলুয়া। উত্তৰ আছে যেতিয়া বিশ্বাসত তুমি প্ৰাৰ্থনা কৰিবা, কিন্তু উত্তৰ তোমাৰ ভয়ৰ লগত সন্দেহৰ লগত কৰাটো উত্তৰ নাই, কাৰণ তোমাৰ হৃদয় এগ্ৰী কৰা নাই তোমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ লগত, তোমাৰ হৃদয় এগ্ৰী কৰা নাই তোমাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ লগত, কাৰণ তোমাৰ হৃদয় ফুল অফ ফিয়াৰ, বহুত ভয়ৰ লগত তুমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছা, আৰু সেই প্ৰাৰ্থনাৰ ৰিজাল্ট তুমি নোপোৱা, কাৰণ বহুত সন্দেহৰ লগত তুমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছা, আৰু সেই সন্দেহত কৰা প্ৰাৰ্থনা উত্তৰ তুমি কেতিয়াও নোপোৱা। কিন্তু প্ৰাৰ্থনা যেনেকৈ কৈছোঁ, ইউ অল নট ডেট পাৱাৰ প্ৰাৰ্থনাত আছে, কিন্তু প্ৰাৰ্থনা বিশ্বাসৰ দ্বাৰা কৰাতহে শক্তি আছে। কেৱল প্ৰাৰ্থনা কৰাত শক্তি নাই, কিন্তু প্ৰাৰ্থনাটোত বিশ্বাস থাকিব লাগিব। সেই বিশ্বাসটো থাকিলেহে সেই প্ৰাৰ্থনাত শক্তি আছে। কেৱল সাধাৰণ স্বৰূপে এনেকৈ সেই মানুহজনৰ নিচিনা নহয়, কেন ইউ মানে কুৱেশ্যনিং এবাউট দ্য এবিলিটি অফ গড, সেই এনেকুৱা কৰা প্ৰাৰ্থনা উত্তৰ নাই। কাৰণ কেলৈ? কেন ইউ, ইফ ইউ উইলিং,
সেই প্ৰাৰ্থনাৰ উত্তৰ নাই। কিন্তু সেই প্ৰাৰ্থনাত উত্তৰ আছে যি প্ৰাৰ্থনাত ইনফেডত কৰা হয়, বিশ্বাসৰ লগত কৰা হয়। সন্দেহৰ লগত কৰা প্ৰাৰ্থনাত উত্তৰ নাই, কিন্তু বিশ্বাসৰ লগত কৰা প্ৰাৰ্থনাতহে উত্তৰ আছে। আৰু বিশ্বাসৰ লগত কৰা প্ৰাৰ্থনাৰ শক্তি আছে, সন্দেহৰ লগত কৰা প্ৰাৰ্থনাৰ শক্তি নাই। विश्वास से किया हुआ प्रार्थना में सामर्थ्य है, संदेह से किया हुआ प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, डर से किया हुआ प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब आप विश्वास के द्वारा हृदय से कोई संदेह नहीं करके आप प्रार्थना करोगे तो उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु हमें देगा। हालेलुया। तब उस प्रार्थना का उत्तर हम लोग देखेंगे, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है, लेकिन प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, विश्वास का प्रार्थना में सामर्थ्य है। हालेलुया। और विश्वासी लोग ये भी करते हैं कन्फेशन। हम लोग का चर्च में तो सिखाते रहते हैं कन्फेस करो, मुंह से घोषणा करो, मुंह से घोषणा करो। बहुत सारे लोग बैठे भी हैं, कन्फेशन के द्वारा बहुत सारे फल होते हुए देखा भी है। लेकिन कन्फेस करने से भी कुछ नहीं होगा, सच बोल रही हूँ मैं। ओनली कन्फेशन ऑल्सो विल नॉट वर्क आउट। ओके, सिर्फ कन्फेस करना काम नहीं आएगा, लेकिन उस कन्फेशन में भी क्या होना पड़ेगा? विश्वास होना पड़ेगा। पास्टर ने तो सिखा दिया कन्फेस करना है, पास्टर ने तो सिखा दिया कि मुंह में जीवन और मृत्यु है। हालेलुया। यू माइट बी थिंकिंग दैट व्हाई आई एम नॉट डिस्प्लेइंग सो मच बाइबल वर्सेस, सो आई एम जस्ट गोइंग ऑन। ओके, सो या मतलब आप लोग देखो, मैंने जैसे कहा पास्टर ने तो सिखाया है कन्फेशन करने के लिए। पास्टर ने तो कहा है प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ जैसे जे आपका मुंह में जीवन और मृत्यु है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है फिर भी, राइट। हम लोग मुंह से कन्फेस किया, प्रार्थना भी कुछ नहीं होता है जब हम लोग संदेह से करते हैं। हालेलुया। जब हम लोग संदेह से करते हैं उस प्रार्थना में कोई सामर्थ्य नहीं है, और उस कन्फेशन का भी कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उस कन्फेशन में विश्वास मिला हुआ नहीं है, उस प्रार्थना में विश्वास मिला हुआ नहीं है। तो वो विश्वास नहीं मिला हुआ प्रार्थना और कन्फेशन में कभी भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि दिल से क्या करना पड़ेगा? उसको विश्वास करना है। वो भी एक्शन है। यू नो, यू माइट बी थिंकिंग अरे मैं तो दिल से ही प्रार्थना करता हूँ, अरे मैं तो दिल से ही विश्वास करता हूँ। नहीं, तुम्हारा दिल से नहीं हो रहा है। If you are not seeing the result, that means it is not from the heart. If you are confessing but still not working, it is not from the heart. Okay? दिल से नहीं है ये, दिल से नहीं हो सकता ये, क्योंकि अगर तुम कन्फेस कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है, वो दिल से नहीं हो सकता। अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो नहीं हो रहा है, वो भी दिल से नहीं है। इसलिए ना मैंने एक चीज़ सीखा कि हर प्रार्थना, कुछ किस प्रार्थना बहुत दिन लगता है, वो भी हम लोगों का कारण से देर लगता है, यीशु का कारण से देर नहीं लगता है। क्योंकि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं उसी समय वो सुनता है, उत्तर भी देता है, लेकिन हमारा अनबिलीफ का कारण से उस उत्तर का, उस आंसर का, क्वेश्चन का उत्तर हम लोग नहीं देख पाते, और वो उत्तर हमारे बीच में नहीं आता है, क्योंकि हृदय से विश्वास होता है, सिर्फ मुंह से नहीं। क्योंकि प्रार्थना कहाँ से करते हैं? मुंह से करते हैं। घोषणा किससे करते हैं? मुंह से करते हैं। लेकिन वो से इसका सामर्थ्य नहीं होता तब तक जब हृदय से विश्वास नहीं करते। हालेलुया। आइए हम लोग वचन देखेंगे। See this one, Mark 11:22 and 23. It is written, right? Jesus answered and said to them, "Have faith in God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, this person has a faith." How faith, you know? Mountain moving faith. वो भी विश्वास कर रहा है, वो भी विश्वास कर रहा है कि ये विश्वास नहीं करके मतलब देखो, ये आदमी बोल रहा है, राइट? ये बोल सकता है आदमी कि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे कि whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart. ये वाला प्रार्थना तो आप लोग बोलते हो, बहुत लोग को देखा है ये प्रार्थना मैंने किया हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी तुम प्रार्थना में करते हो, अगर तुम इस पर्वत को कहते हो यहाँ से हट जाओ, तो ये हट जाएगा, लेकिन नहीं हटता। बहुत सारे लोग बोलते भी है, परमेश्वर का वचन कहते, कन्फेशन, राइट? परमेश्वर का वचन कहता है, तो आप लोग भी कहते हो, लेकिन नहीं हटता माउंटेन। आपका इतना विश्वास है कि आप एक पर्वत को भी हटा देने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। आई थिंक सम ऑफ देम हैव प्रेड, दैट्स व्हाई दे आर लाफिंग। सो वो विश्वास करते हैं कि हट जाएगा, लेकिन नहीं हटता है। क्यों नहीं हटता है? बिकॉज
यहाँ पे बोला गया है does not doubt in his heart but believes that those things he says will be done. He will have whatever he says. Amen. देखो, माउंटेन मूविंग फेथ भी हो सकता है आपके पास, लेकिन वो फेथ काम नहीं आता है जब दिल से क्वेश्चन रहता है, जब दिल में संदेह रहता है। संदेह कैसा दिखता है मालूम है? प्रे तो कर रहे हो लेकिन क्लियर नहीं है, संदेह से कर रहे हो। प्रे तो कर रहे हो लेकिन क्लियर नहीं है, फियर से कर रहे हो। हम लोग ऐसे करते हैं ना, कभी कभी प्रार्थना कर लेते हैं प्रभु करेगा, उसके बाद लोगों के सामने जाके दर बोले हाँ मैंने प्रार्थना तो किया है लेकिन पता नहीं बहुत दिन हो गया उत्तर तो नहीं आ रहा है। हाँ मैंने इस विषय में प्रार्थना किया है। ओ सिस्टर प्लीज यू ऑल्सो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। ओ सिस्टर प्लीज यू ऑल्सो डू प्रेयर फॉर मी। ओ आंटी प्लीज यू ऑल्सो डू रिमेंबर। अरे क्या फेद है ये, क्या फेद हुआ ये? अगर तुम उसको भी बोल रहे हो, इसको भी बोल रहे हो, उसको भी बोल रहे हो, क्या फेद हुआ? क्या माउंटेन रिमूविंग फेद हुआ तुम्हारा? ये कैसे हो? इतना सारे लोगों को तुम प्रे करने, तुम किस लिए तुम बोल रहे हो? क्योंकि तुम सोचते हो कि उस आदमी का, उस व्यक्ति का प्रार्थना प्रभु सुनता है, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते कि तुम प्रे करने से होगा। Because of this reason, what do you know all the time? Please sister, do remember me in your prayer. Please sister, pray for my family. Because your prayer God always answer. ठीक है, विश्वास करते हो, अच्छा है कि उसका प्रार्थना प्रभु सुनता है, तो आप वो चीज़ देखो ना, उसका क्या प्रार्थना है, कैसे वो प्रार्थना करता है, कैसा वो जीवन जीता है जो परमेश्वर उसका प्रार्थना सुनता है। We have to learn that. हम लोग को वो सीखना है कि कैसा प्रार्थना है, क्या प्रार्थना है जो वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर सीधा उत्तर देता है। लेकिन हम लोग उसको नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ देखेंगे कि वो सिस्टर प्रार्थना करने से परमेश्वर उत्तर देता है, और वो प्रार्थना माउंटेन मूविंग प्रार्थना नहीं होगा। वो कन्फेशन में कुछ फल नहीं आएगा। कन्फेस तो कर रहे हो, दूसरों को प्रार्थना भी करने के लिए बोल रहे हो, क्या बिलीव है ये? क्या बिलीव हुआ ये बिलीफ नहीं है, ये डाउट है, ये फियर है कि का मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा कि नहीं पता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको प्रे करो, क्योंकि परमेश्वर उसका प्रार्थना सुनता है। तो इसमें क्या दिख रहे हैं हम लोग? इन हिज हार्ट, क्या? does not doubt in his heart, but this person is what is doing? Doubting in his heart. दिल में वो संदेह कर रहा है, इसलिए पूरा दुनिया को बोल रहा है, जिसको भी जानता है परमेश्वर में लगा हुआ, प्रे करो, प्रे करो। It is good to ask for the prayer, okay? I'm not saying that it is bad to say someone to pray for me. खराब नहीं है बोलना, लेकिन आप भी, परमेश्वर बोला है ना कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग हमेशा दूध पीते रहो, है कि नहीं? दूध पीने वाला बच्चा ही है जो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे मुंह में आके डाल दे तभी मैं पीऊँगा, है कि नहीं? लेकिन जो मीट खाने वाला होता है ना, वो लोग खुद चुन चुन के अच्छे से खाते हैं, है कि नहीं? तो परमेश्वर चाहते हैं आज हम लोगों को कि वो मीट खाने वाला बिलीवर बनो, वो नहीं जो दूध पीने वाला बिलीवर। जब कुछ चाहिए तो रो देंगे तो मम्मा पता हो जाएगा तो मम्मा लाके देगा, वो वाला बिलीवर नहीं। लेकिन वो वाला बिलीवर बनो जो खुद अपने हाथों से उठा के खुद खा सके। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग वो विश्वासी बने जो खुद का हाथ से उठा के खुद खा सके। हालेलुया, हालेलुया। सब लिख सकें हालेलुया, और जोर से हालेलुया। यस, परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा है कि नहीं? God is talking to us, right? Even God is talking to me also. Many things I'm learning now. On this stage, I'm learning many things because God is talking to us. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर बहुत सीरियस है उसका मिशन को लेके, जिस मिशन में उसका संतान लोग भी है। क्योंकि लास्ट टाइम एक सर्वेंट ऑफ गॉड आया था, तो उसने कहा था कि आपके बिना भी परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। मालूम है, परमेश्वर को भी करने के लिए हम लोग को, देखो अभी यहाँ पे भी बच्चन में भी हम देखा राइट, सिर्फ विश्वास मतलब इन फेथ नहीं होता, बिलीव। दैट मीन्स क्या? इसमें मैंने बोला है ना, हम लोग का रोल है, हम लोग का रिस्पॉन्स है। मतलब परमेश्वर भी हर चीज़ को करने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर नहीं कर पा रहा है। किस लिए नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हम लोग का बिलीफ नहीं है। उसने बोल दिया, उसने विश्वास का आत्मा दे दिया, और वो विश्वास का आत्मा हमें सहायता भी करता है, लेकिन हम लोग अपना कार्य को नहीं कर रहा है। और नहीं करने का
उसका जो आशीष है, जो उसका परिकल्पनाएं हैं, उसको हम लोग अपना जीवन में होते हुए नहीं देख पा रहे। तो इसलिए आज हम लोग को जानना है कि मैं जो प्रार्थना इतना दिन से कर रहा था, ये प्रार्थना मैंने इन फेथ किया ना इन बिलीव किया। और जो चीज़ को मैं आज तक पकड़ रहा था कि यही है विश्वासी का जीवन के यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, पुनर्जीवित होकर उठा, वही सिर्फ जानना एक विश्वासी का जीवन होता है। और एक प्रार्थना करने, बाइबल हमेशा पढ़ना, वही सिर्फ विश्वासी का जीवन होता है। आप लोग सोचते हो तो परमेश्वर उससे भी बात कर रहा है कि तेरा जीवन में और उससे भी बेहतर परिकल्पनाएं मैंने रखा है जो मैं करना चाहता हूँ। हालेलुया। तो उसके लिए आज परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं कि लेकिन तुमको अपना रिस्पॉन्स, तुमको अपना एक्शन करना पड़ेगा। हालेलुया। देखो, हम लोग बचपन में सबने देखा है, जो एक स्त्री है लहू जो बह रही थी उसका 12 साल से, उस स्त्री ने क्या विश्वास को लेते हुए सिर्फ अगर रहती वो, अगर एक्शन नहीं करती वो, उसको चंगाई मिलता? कभी नहीं मिलता, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसको परमेश्वर चंगाई देना चाहता है, जिसको परमेश्वर सुधरना चाहता है, जिसको परमेश्वर बदलते हुए देखना चाहता है। तो इसलिए परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि देखो, उस स्त्री को देखो, सिर्फ विश्वास करके वो नहीं रहा, लेकिन अगर सिर्फ विश्वास करते रहता तो वो बीमार से वो कभी भी अच्छी नहीं होती, राइट। और आप मालूम है जक्कया जो शॉर्ट वाला व्यक्ति था, उसका भी आप लोग मालूम है उसका घर में उद्धार कैसे आया मालूम है? सिर्फ उसने विश्वास करके रहा नहीं रहा, लेकिन पेड़ का ऊपर चढ़ा यीशु को देखने के लिए, ताकि यीशु उसको देखे और यीशु उसका घर में आए और उसको उद्धार मिले। हालेलुया। तो देखो यहाँ पे कितना सारा एक्शंस है। और वो जो उसका जो दोस्त जो बीमार था, उसका दोस्त लोग जो लेके आए यीशु के पास, अगर उसका दोस्त लोग अगर दिखता कि हाँ बहुत सारा लोग है यहाँ पे, तो हम लोग के लिए बस समय होगा कि नहीं संगाई के लिए, क्योंकि बहुत सारा भीड़ तो ऑलरेडी है वहाँ पे, अगर हम लोग जाए तो होगा कि नहीं। और हम लोग का मतलब वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, राइट। हाँ बट वो लोग ऐसे नहीं सोचा, लेकिन उस लोगों ने क्या किया, ऊपर जाके रूप को खोल के उसका ऊपर से दिया, तो वो चीज़ ने क्या किया, चंगाई दिया। एक्शन इज देयर, एक्शन इज देयर। तो विश्वासी हम लोग जो है, एक्शन इज नॉट देयर, एक्शन इज नॉट देयर। दैट इज व्हाई क्या हो रहा है, इवन दो ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, नॉट वर्किंग, you know, transformation also is in all things are possible, deliverance also is in all things are possible, marriage also all things are possible, right life partner also in the all things are possible, healing, deliverance, everything, all things are possible, but belief is our part, belief is our part, okay। So आज यही मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, विश्वास सब आप लोग करते हो और उससे परमेश्वर बहुत खुश है कि आप लोग उसको विश्वास करते हो। लेकिन परमेश्वर उस चीज़ से हम लोगों से खुश नहीं है जो हमारा पार्ट है, जो हमारा रोल है, जो हम लोग को करना है, जिसमें हम लोग नहीं कर रहे हैं एक्शन। यस, राइट। सो यू ऑल आर गेटिंग राइट व्हाट आई मीन टू से। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड, ऐसे ही नहीं कहा है। नहीं तो बोलता कि विश्वास कर लिया और विश्वास करने जन के लिए सब कुछ संभव हो गया, बोलता इन फेथ वाला, लेकिन नहीं कहा। किस लिए? क्योंकि फेथ तो प्रभु दे दिया है, लेकिन प्रभु चाहता है कि अभी हम लोग कार्य करें। हालेलुया। यीशु चाहता है कि अभी हम लोग चलाए। गाड़ी तो दे दिया है, चाबी भी दे दिया है, लेकिन अगर गाड़ी को इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो गाड़ी रखते रखते खराब हो जाएगा। लेकिन अगर उसको इस्तेमाल करोगे तो उसका जो मतलब बेनिफिट है उसको आप लोग क्या कर सकोगे, ले पा सकोगे, राइट। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है आज हर एक व्यक्ति जो इधर बैठा हुआ है, परमेश्वर चाहता है कि बोल रहे हैं कि हम सबके पास बिलीफ है, फेथ है, बट बिलीफ नहीं है, एक्चुअली बिलीफ नहीं है।
प्रेयर करते हो, कन्फेशन करते हो, लेकिन उस प्रेयर का, उस कन्फेशन का आंसर क्यों नहीं देखते? क्योंकि उसमें विश्वास, जो बिलीफ है वो मिला हुआ नहीं है। डर से प्रार्थना करते हो, डाउट से प्रार्थना करते हो, इसलिए क्या होता है, बहुत समय पे दूसरों के प्रार्थना के ऊपर निर्भर रहते हो। लेकिन प्रभु चाहता है कि दूसरों के प्रार्थना के ऊपर निर्भर मत रहो, तुम भी सीखो कि वो व्यक्ति मुझे कैसे चाहता है कि मैं उसका प्रार्थना सुनता हूँ। तुम भी ऐसे ही करो कि तुम्हारा प्रार्थना भी मैं सुनो, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारा प्रार्थना सुनता ही है। Do you know? God says that we are the righteous now. हम लोग धार्मिक बन चुके हैं, यीशु मसीह में हम लोग धार्मिक लोग हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर फिर भी बोलता है कि उस धार्मिकता में तुम लोग बढ़ो। हालेलुया। और परमेश्वर ने जिसलिए हमें धार्मिकता बनाया है, इसलिए परमेश्वर ने कहा भी है कि प्रभु धार्मिक जन का प्रार्थना को सुनता है। तो यहाँ पे बैठे हुए कितना जन लोग हैं, हाथ उठाइए तो पापी है? ओके, देन गॉड आप लोग का प्रार्थना नहीं सुनता है। टू बी सीरियस, ऑनेस्टली आई एम सेइंग, जो खुद को आप लोग सोच लेते हो कि आप लोग पापी हो, तो परमेश्वर आप लोग का प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि धार्मिक जन का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, पापी का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। लेकिन आप लोग पापी नहीं हो, वो आप लोग जानो कि आप लोग पापी नहीं हो। इसलिए आप पापी नहीं हो क्योंकि यीशु मसीह को आपने जाना है और यीशु मसीह का संतान आप लोग हो चुके हैं। तो एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो पिता हमारा पवित्र है, उससे निकला हुआ संतान कैसे गंदा हो सकता है? परमेश्वर पवित्र है, तो उससे जो निकला हुआ चीज है वो कैसे अपवित्र हो सकता है? अभी आप लोग विश्वास करते हो कि नहीं कि आप लोग परमेश्वर का संतान है? परमेश्वर का संतान है, विश्वास करते हो? अगर आप लोग विश्वास करते कि आप लोग परमेश्वर का संतान हो, तो आप कैसे अपवित्र बना? आप कैसे पापी बन सकता है? क्योंकि आपने यीशु मसीह को जिस दिन विश्वास किया, उस दिन यीशु मसीह का धार्मिकता आप लोगों को दिया गया। जो कपड़ा आपका था, जो गंदगी कपड़ा आपका था, उस कपड़े को खोल के यीशु ने उसका कपड़ा आप लोगों को पहनाया। और जो कपड़ा आपका पुराना था वो पाप का था, वो गिरा हुआ का था। लेकिन जब आपने यीशु को ग्रहण किया, तब आपको यीशु ने उसका धार्मिक का कपड़ा पहनाया, उसका संतान होने का कपड़ा पहनाया। हालेलुया। तो अभी आज से आप लोग मानो कि मैं अभी अपवित्र नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप सोचोगे मैं अपवित्र हूँ, अगर आप सोचोगे मैं पापी हूँ, तो आप हमेशा सोचोगे कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, परमेश्वर मेरा प्रार्थना को नहीं सुनेगा। तो वैसे किया हुआ प्रार्थना का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? कैसे मिलेगा वैसे किया हुआ प्रार्थना? प्रार्थना करने से पहले ही आपने उस डाउट के द्वारा क्या दे दिया? बंधन, बीच में एक पर्दा दे दिया। किस लिए? क्योंकि आप बिलीव कर ले कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुनेगा क्योंकि मैं पापी हूँ। लेकिन परमेश्वर का संतान लोग जो भी है, यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोग पापी नहीं हैं। अभी पापी थे, लेकिन यीशु मसीह में धार्मिक बन चुके हैं। हालेलुया। जितने, और ये बात जानो, जिसको परमेश्वर ने धार्मिक बनाया है उसका प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। क्योंकि आप लोग धार्मिक हो तो आपका प्रार्थना यीशु सुनता है। तो आज से भी विश्वास करो, यीशु ने कहा है धार्मिक जन का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। तो आप विश्वास करो आज से कि मैं जो भी परमेश्वर को मांगूंगी, जो भी परमेश्वर को मैं कहूंगी, पिता मेरे लिए करेगा। लेकिन जानना पड़ेगा कि वो परमेश्वर का इच्छा है कि नहीं। हालेलुया। और एक चीज मालूम है, परमेश्वर का इच्छा ना, हर समय परमेश्वर हम लोग को उत्तर देता है। I'm honestly saying, परमेश्वर हर समय में हम लोग को उत्तर देता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि मैंने जो प्रार्थना किया उसका उत्तर तो आया ही नहीं। दैट इज द आंसर। वही आंसर है। जब नहीं आता है वो भी आंसर है, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि वो मेरा बच्चा के लिए अच्छा नहीं है। तो प्रभु क्या करते हैं, उस चीज़ को हमसे हटा देता है। हालेलुया। देखो, आई एम टेलिंग अबाउट दिस थिंग, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, रिगार्डिंग लाइफ पार्टनर, इफ़ यू प्रे, पर्टिकुलर पर्सन एक पकड़ के अगर आप प्रार्थना करोगे, उस प्रार्थना का उत्तर होते हुए नहीं देखोगे। क्योंकि देखो, हम ऑलरेडी एक लड़का से सपोज प्यार हो गया, तो मैं कहूँगी प्रभु मुझे उसको दो, मुझे उसको चाहिए। वो प्रार्थना परमेश्वर नहीं करने वाला, क्योंकि वो परमेश्वर का इच्छा है कि नहीं, पहले आपको वो जानना पड़ेगा कि वो लड़का मेरे लिए है कि नहीं।
दैट इज़ अ राइट प्रेयर। द परमेश्वर, इसको मैं पसंद करती हूँ, हाँ, दैट इज़ नॉट बैड टू लाइक समवन, ओके, दैट इज़ नॉट ए सीन टू लाइक समवन। क्योंकि हम लोग लड़की है, सपोज नाउ आई एम नॉट ए गर्ल, आई एम ए वुमन, आई एम मैरिड, बट लेकिन जो लड़की है, आप लोग को परमेश्वर ने आपको एक पुरुष के लिए बनाया ही है और उसको परमेश्वर ने आप लोगों के लिए रखा ही है, और लड़का के लिए भी एक स्त्री रखा ही है, पुरुष के लिए भी स्त्री और स्त्री के लिए भी पुरुष परमेश्वर ने रखा ही है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पर्टिकुलर पर्सन लेके प्रभु मुझे उसको चाहिए, ऐसा प्रार्थना, उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देगा जब आप पूछोगे कि प्रभु ये व्यक्ति जो मैं पसंद कर रही हूँ, ये व्यक्ति मेरे लिए है कि नहीं। दिस इज द राइट प्रेयर। दिस इज नॉट द राइट प्रेयर दैट आई लाइक हर लॉर्ड, so let her be my wife, let him be my husband. That is not the right prayer. But the right prayer is, Lord, this is your will or not, show me, tell me God. Then definitely परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। अरे परमेश्वर मुझे बात कर सकता है, परमेश्वर यहाँ पे लोग जो भी शादीशुदा है, बहुत लोगों ने देखा है बात कर सकते हैं, तो आपसे क्यों बात नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ज़रूर बात करेगा, लेकिन उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर के आगे अधीन होना है। किससे? नॉट इन फेथ बट इन बिलीव। और जब उस बिलीव में आप रहोगे तो परमेश्वर का काम होते हुए अपना जीवन में देखोगे। ऐसे ना हो कि सिर्फ विश्वास को लेके ही हेवन जाओ, लेकिन जो परमेश्वर ने पुरस्कार रखा है उसको ना मिले। ऐसे मतलब देखो, नो वन इज़ हियर जो चाहता है कि मैं एग्ज़ाम में सिर्फ पास करने से हो गया। और सच बोल रही हूँ, अगर वैसे सोचने वाला स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं तो उसका भविष्य क्या होगा वो कुछ सोचे। क्योंकि देखो, हम लोग जो भी पढ़ते हैं, जो भी एग्ज़ाम्स लिखते हैं, हम लोग हमेशा उस हिसाब से लिखते हैं, उस हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं। इवन जो 3rd डिवीज़न मारता है ना, वो भी सोचते हैं मैं और अच्छा करूँगा, उसका भी रहता है इच्छा। तो हर एक जन है जो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क लाने के लिए इच्छा करता है, अच्छा सफलता देखने के लिए इच्छा करते हैं कि नहीं। तो वैसे सब लोग यहाँ पे हैं जो अच्छा मार्क्स को डिज़ायर करते हैं, अच्छा चीज़ को डिज़ायर करते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग का जो प्रिपरेशन होता है ना, वो प्रिपरेशन हम लोग को करना पड़ता है। और वैसे ही बिलीव जो फेथ में है, उन लोगों को उस बिलीव में ऐसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी जो रिजल्ट अच्छा से भी अच्छा परमेश्वर ने रखा है, उस रिजल्ट को आप लोग देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात किया है, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहूँगी कि प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, और जैसे वो हमें प्यार करता है वैसे वो हमारे लिए केयर भी करता है। सी द बिगिनिंग आई स्टार्टेड विद Assamese but ending with the Hindi. But I didn't recognize that I'm preaching in Hindi, but I thought that I'm preaching in Assamese. But when I heard that I'm preaching in Hindi, because God knows that here someone is here who needs the word. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो भूखा और प्यासा है, परमेश्वर उसको तृप्त करता है। तो जिन लोगों को भी लगा है जो परमेश्वर आज हमसे बात किया है, तो वो लोग बदलो, वो लोग अपना जीवन में विश्वास को बदले, विश्वास में वो लोग बढ़े, और उस विश्वास का वो लोग कार्य करें, तब उन लोग का जीवन में परमेश्वर का फल को वो लोग देख सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का योजना हमारे लिए भला और अच्छा है। उसका योजना में सबमिट होने के लिए मत डरो, उसका योजना में सबमिट होने के लिए मत डरो। अगर कुछ छोड़ना भी पड़े छोड़ो, अगर कुछ खोना भी पड़े खो दो, कोई बात नहीं, क्योंकि उसका जो योजना है फार 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 बेटर, बहुत 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 अच्छा है। हालेलुया। बिकॉज ही इज़ ग्रेट, वो अच्छा है और उसका हर एक काम अच्छा है। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आज का वचन के लिए हम उसको धन्यवाद देंगे।